as well. So that really helped because of the, when rain interrupt, the wicket was under cover. So that's why we got some little bit more extra help. Yeah. This is Moisha from the news. Welcome back to Test Cricket. Thanks. How do you feel the wicket was today, and did you get some support from the wicket? Yeah, like it's great to be back in red ball after 1.5 year. I really enjoyed, but I was struggled a bit as well. So I think it will be fine from the next innings. Like there are some adaptation things. So I really enjoyed. Like we keep bowled them out in good totals. So I'm really hopeful as well. Hey Taskin, this is Behram Kazi from Pro Sports. Congratulations on the 3-fer. You bowled really, really well. Thanks. Talk to me through that first dismissal, Abdullah Shafiq's dismissal. You took 5 deliveries away from him and then brought 1 back in. So talk me through whatever you planned for. Yeah, that was really, really enjoyable for me, that wicket, because I have set him up for away 1 5 ball, and the last one I tried to bring him in, and that happened. That was intentional. That's why I was really happy about that wicket. But like sometimes still I won't get wickets, but the process has to be same. Also I'm learning. I'm playing for last almost 10 years, so that's how I learn. So yeah. Hello, Taskin. This is Abu Bakr from Crickwick. First of all, congratulations for your spell Thanks. in the comeback. So Nahid Rana, a very promising young talent. He bowled really well despite the numbers. He helped the team and put pressure on from one side. So how satisfactory and helpful it is as a senior bowler when you see a youngster in that team performing like that? Yeah, Nahid Rana is a great prospect for us. He can bowl high 140s consistently. His effort ball is around 150. So he's a great prospect for us, and he's getting better. He's also learning. Overall, our whole bowling unit did really well today. But after they started pretty well after first wicket, they had a good decent partnership. Then we came back really strong and finished well. So it's still so match didn't finish yet. So long way to go. The result is the main thing. So we are looking forward to it. Thanks. Taskin, Pakistan was almost dominating the first session, the morning session. What were the discussions during the lunch break? Were there any switch of planes? When we tried to attack early on, then they scored. They had a good partnership. Then after that, after lunch break, we had some meetings and plans. We executed well. That's why we defend them in a decent total. The thing is, you can do so many plans. And that also important to execute well. We executed well according to plans. We bowled, and that's why we bowled them out. Thanks. তাসকিন অবশ্যই অনেকদিন পর টেস্ট খেলছেন, কিন্তু লেন্স দেখে বা আপনার শুরুটা দেখে মনে হচ্ছিল না যে কোনো জায়গায় অফ ছিলেন আপনি। তো শুরুটার কথা যদি একটু বলতেন, যেহেতু বাংলায় জিজ্ঞেস করছি, আর পুরো দিনটা আপনার জন্য স্পেশালি কেমন গেল? এটা কি বাংলায়? বাংলায়। জি, আলহামদুলিল্লাহ, অনেকদিন পরে টেস্ট ক্রিকেটে এসে শুরুটা মোটামুটি ভালোই ছিল। বাট দ্য থিং ইজ, খেলা তো এখনও শেষ হয়ে যায় নাই। আমাদের আরও সেকেন্ড ইনিংস আছে, ভালো ব্যাটিং করতে হবে। জিতাটাই মেন লক্ষ্য। টিমস কামস ফার্স্ট। বাট আলহামদুলিল্লাহ খারাপ হয় নাই। ওভারঅল আমরা বোলিং ইউনিট অনেক ভালো করছি, বাট আরও ভালো করতে পারতাম। কিন্তু সব কিছু নিয়ে কাজ করতেছি। আসলে অনেক দিন ধরেই খেলতেছি, তো যেই ফর্মেটে যেভাবে অ্যাডাপ্ট করা যায় তাড়াতাড়ি, এবং এটা আমার নিজেরই দায়িত্ব, এবং এটাই হওয়া উচিত অ্যাজ এ এক্সপিরিয়েন্স এবং সিনিয়র বলার হিসাবে। তো এখনও অনেক কিছু করা বাকি এই ম্যাচে। আমাদের ভালো ব্যাটিং করতে হবে, সেকেন্ড ইনিংসে ভালো কামব্যাক করতে হবে, জিততে হবে। তো এখনও কিছুই শেষ হয়ে যায় নাই। হ্যাঁ, মোটামুটি ভালো হয়েছে, আরও ভালো হইতে পারতো, আরও ভালো হবে ইনশাল্লাহ। 274-এ অল আউট। তো বাংলাদেশ এখন 1.5 দিন ব্যাটিং করলে কি মনে করেন যে একটা সুযোগ তৈরি হয়ে যাচ্ছে কিনা? আসলে রানটা লিড নেওয়াটা অনেক ইম্পর্টেন্ট, কারণ আমি তো বল করে বুঝলাম যে উইকেটে যথেষ্ট স্পোর্টিং বোলিং ব্যাটিং দুইটাতেই হেল্প আছে। ফাস্ট বোলিং স্পিন দুইটাতেই সুন্দর একটা হেল্প আছে বলারদের জন্য। সো ব্যাটসম্যানদের সেট হওয়াটা ইম্পর্টেন্ট। তো আশা করছি আমরা যদি কালকের দিনটা সারাদিন ভালো মতো ব্যাটিং করতে পারি এবং ভালো একটা টোটাল বোর্ডে দাঁড় করাই, আমাদের ফরে আসবে রেজাল্ট ইনশাআল্লাহ। Skin Abdul Jabbar Faisal from Sports Portal. After your performance on the first day in this match, do you think Pakistani bowlers can create a problem for the Bengali batters? And what will be your advice to your batters? Now, they have very good bowling set as well. So there are some, I haven't seen them much, but what I saw from the fastest, they're really good. So
from the for the bearers, like just to make the new ball old, then you will get benefited. Thank you. अस्सलाम सलमान, दिस इज़ अबू बकर फ्रॉम क्रिकेट। बहुत ज़बरदस्त 50 एक दफ़ा फिर टेल के साथ आपने बहुत अच्छी बैटिंग की। तो रिसेंटली पाकिस्तान ने श्रीलंका, पाकिस्तान और ऑस्ट्रेलिया में जहाँ भी खेला आपने तीनों कंडीशंस में अच्छे रन्स किए हैं, लेकिन ओवरऑल पाकिस्तान के बैटर्स थोड़ा स्ट्रगल कर रहे हैं 50s को 100 में कन्वर्ट करने में। तो एज अ बैटर आपको क्या लगता है कहाँ पे थोड़ा लैग कर रहे हैं हम लोग? बिल्कुल कोशिश तो होती है कि मतलब जो भी स्टार्ट मिले उसको बड़ा कन्वर्ट करें, लेकिन समटाइम आप मतलब जितनी मर्जी कोशिश कर लें वो होता है चीज़ें नहीं होती हैं। तो मैं भी कोशिश करता हूँ और आई एम श्योर सारे बैट्समैन कोशिश करते हैं कि जितनी अगर 50 की है या जो भी आपको स्टार्ट मिला उसको कन्वर्ट करें, लेकिन ये एक कंसर्न है जिसको हम देख रहे हैं और उम्मीद है कि आने वाले वक्त में उसको बड़े रन्स में कन्वर्ट करेंगे। अस्सलाम वालेकुम सलमान, वालेकुम मोहम्मद एजाज फ्रॉम पाक पैशन। पहले सेशन में हमने 25 ओवर्स में 99 रन्स किए, एक विकेट हमारी गिरी। उसके बाद दूसरे सेशन में हमने अगेन 25 ओवर्स में तकरीबन 60 रन्स किए और 4 विकेटें गिरी। तो क्या लगता है आपको थोड़ा सा पोस्ट लंच पिच का बिहेवियर चेंज हुआ है या हमारे बैटर्स थोड़ा सा और जिम्मेदारी के साथ खेल सकते थे? आप मिक्सर कह सकते हैं दोनों चीज़ों का, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि पोस्ट लंच जो है उन्होंने बॉलिंग भी अच्छी की है। उन्होंने जो लेंथ से पहले वो लोग थोड़ा मुझे लगता है कि शॉर्ट बॉलिंग कर रहे थे, लेकिन लंच के बाद उन्होंने अपनी लेंथ को थोड़ा आगे किया, जिसकी वजह से मेरे ख्याल से ज़्यादा हेल्प मिलना शुरू हुई थी। तो समटाइम आपको ओपोजिशन को भी क्रेडिट देना पड़ता है, और हाँ आप कह सकते हैं कि कुछ शॉट ऐसे भी हैं जो मतलब बेहतर तरीके से एग्जीक्यूट हो सकते थे, लेकिन मिक्सचर ही है। सलमान, अब्दुल जब्बार फैसल, स्पोर्ट्स बुलेटिन से। आप भी एक गैर शॉट खेलते हुए आउट हुए, सैम अयूब भी इसी तरह आउट हुए, तो ये टेस्ट मैच है, यहाँ तो लंबी इनिंग्सें खेलनी पड़ती है। क्या आपको टेस्ट मैच के लिए कोई खसूसी ट्रेनिंग नहीं दी जाती ताकि बड़ी इनिंग्स खेल जाए? कप्तान ने भी 57 किए, विकेट लूज़ कर दी, तो ये हमारे बैट्समैन लंबी इनिंग्स क्यों नहीं खेल पाते? सर कोशिश तो हम करते हैं लंबी इनिंग खेलने की, और आप कह रहे हैं कि मतलब हमें ट्रेनिंग नहीं दी जाती। आई थिंक हम लोगों ने इनफ क्रिकेट खेली हुई है, हम लोगों को पता है कि किस तरह मतलब चीज़ों को एग्जीक्यूट करना है, लेकिन सम टाइम मैंने आपको बताया कि आप कितनी भी कोशिश कर लें चीज़ें एग्जीक्यूट नहीं होती। आपको दूसरी टीम अपोजिशन को भी क्रेडिट देना होता है। हाँ ये एक इंसान है, हम लोग बड़ी इनिंग खेलना चाहते हैं जिस पर हम वर्क कर रहे हैं, और आप आने वाले वक्तों में देखेंगे कि हम बड़ी इनिंग्स खेलेंगे। अगर जी आप ये बताइएगा कि इस मैच को आप रिजल्ट शुदा देख रहे हैं या पहले टेस्ट जैसा ये रिजल्ट आने की तो है? सर रिजल्ट तो आएगा, अब ये पहले टेस्ट जैसा आए या मतलब कैसा भी आए, लेकिन हमारी कोशिश यही रहेगी कि मतलब पहले टेस्ट जैसा ना आए, हम इस टेस्ट को जीतें, लेकिन मुझे लगता है कि पिच में इनाफ है कि रिजल्ट आएगा। जाहिद अवान दुनिया न्यूज़ से। सलमान ये बताएं कि शाहीन अफरीदी के बाद हमें नसीम शाह को भी ड्रॉप कर दिया, क्या तजर्बेकार बॉलर की गैर मौजूदगी में मुखालिफ टीम पे हम दबाव डाल सकेंगे? सर सिलेक्शन तो मतलब कैप्टन और मैनेजमेंट का काम है, उससे तो मेरा वो मतलब कोई वो है ही नहीं है, मेरे उसमें इनपुट ही नहीं है। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि ये 3 बॉलर भी अगर आपने डोमेस्टिक क्रिकेट देखी हो तो उन्होंने काफ़ी परफॉर्मेंस किया और इस ग्राउंड में भी काफ़ी परफॉर्मेंस किया। इवन इंटरनेशनल में भी आप देखें, मीर रमज़ान ने जो ऑस्ट्रेलिया में बॉलिंग की और खुरम मंजूर जो पहले टेस्ट में और डेजी ने बॉलिंग की, तो मेरे ख्याल से इनफ हमारे पास बॉलिंग है और ये लोग मतलब इनफ एक्सपीरियंस भी है इनके पास डोमेस्टिक क्रिकेट में इस ग्राउंड पे खेलने का, तो मैं तो काफ़ी होपफुल हूँ। सलमान, दिस इज जाहिद फारूक मलिक। क्रिकेट में जहाँ परफॉर्मेंस होती है हमारा लक का भी बड़ा हाथ होता है। दोनों मैच थे, दोनों में आप टॉस भी हारे, ये तो लक की सूरत हुई। अगर पहले मैच के आखिरी दिन और आज के मैच का जो दिन है इसको मिला के पढ़ें तो क्या कुछ ड्रेसिंग रूम में डिस्कस हुई थी? जो गलतियां पिछले में हुई बैटिंग में भी, आज फील्डिंग में भी ऐसी सूरत देखने को मिली, तो क्या आप समझेंगे ड्रेसिंग रूम में कोई डिस्कस नहीं हुई थी? और क्या जिस तरह बताया गया था वैसे ही खेले हैं? आप लोग सेटिस्फाई हैं अपनी परफॉर्मेंस से आज के हवाले से? सर डिस्कशन तो ऑलवेज ड्रेसिंग रूम में होती रहती हैं, और आप कह रहे हैं सेटिस्फाई, एज ए क्रिकेटर आप किसी भी परफॉर्मेंस से सेटिस्फाई तो नहीं हो सकते, क्योंकि फिर इम्प्रूवमेंट का जो एक रूम है वो ख़त्म हो जाता है। तो हम पता है हमें एज ए टीम एज ए प्लेयर हमें इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है, और वो हमेशा ही रहती है। तो डिस्कशन तो होती रहती हैं, और सम टाइम आप एग्जीक्यूट करते हैं चीज़ों को, सम टाइम आपसे नहीं होती हैं, लेकिन डिस्कशन ऑलवेज ड्रेसिंग रूम में हो रही होती है, और अभी भी है। और अभी कोशिश करेंगे कि कल जो है वो मतलब अच्छा एक दिन गुजरे और उनको जल्दी से जल्दी आउट करने की कोशिश करेंगे। अस्सलाम वालेकुम सलमान भाई, अरफा फिरोज़, जियो न्यूज़ से। अच्छा सलमान भाई, आपके हवाले से जेसन गिलिस्पी हेड कोच ने कहा कि आप स्पेशलिस्ट स्पिनर के तौर पे आप में हैं वो चीज़, तो क्या ये ऐड ऑन प्रेशर तो नहीं हो सकता आप पर, कोई आप फील करते हैं? और दूसरा ये कि क्या टीम मैनेजमेंट की तरफ से कोई प्लान दिया है कि तेज़ इस बार जो है वो खेलना है सेकंड टेस्ट में? सर पहली बात कि मैंने पहले भी बोला है कि मैं जब बैटिंग करता हूँ तो अपने आप को बैट्समैन समझता हूँ, और बॉलिंग करता हूँ तो एज ए मतलब बॉलर ही समझता हूँ अपने आप को। लेकिन प्रेशर तो नहीं है, क्योंकि आप एज ए इंटरनेशनल प्लेयर अगर आप अपने पाकिस्तान से खेल रहे हैं तो ये चीज़ें तो आपके साथ आएंगी, और आपको इनको मतलब देखना ही है। बॉलिंग के टाइम बॉलिंग देखनी है, बैटिंग के टाइम, तो मैं तो इस चीज़ के लिए काफ़ी एक्साइटेड होता हूँ, और कोई ऐसा सच प्रेशर भी नहीं है।
तो मैं इसको एज ए चैलेंज ही देखता हूँ और काफ़ी एक्साइटेड रहता हूँ इसके लिए। और तेज सर मतलब हम काफ़ी बात कर चुके हैं इस बारे में, हर बंदे का अपना तरीका है खेलने का। अब मेरा तरीका है कि मैं ऑलवेज मतलब स्कोर की तरफ जाता हूँ, तो मुझे उस तरह ही खेलना है, और रज़ी भाई का भी सेम ही है। लेकिन प्लेयर्स अपने डिफरेंट रोल्स में खेलते हैं, तो वो कोई ऐसा सच वो नहीं है कि हमने इसकी तरह खेलना है उसकी तरह खेलना है। जो हमारी अपनी गेम है हमें बोला गया है कि वही खेलनी है। सलमान, अभी आपने कहा कि प्लेयर से कोचेस वगैरह बातचीत कर रहे हैं कि जो स्ट्रगल कर रहे हैं, कुछ थोड़ा सा आप हमें बताएंगे कि बाबर आजम से भी कोचेस वगैरह और आपके कोई बातचीत हो रही है कुछ? क्योंकि अभी तक हमने देखा कि 15 इनिंग हो गई हैं और कोई 50 नहीं है। सर वो वर्ल्ड क्लास प्लेयर हैं, अगर 10-12 इनिंग में फेल हो गए हैं तो फिर क्या होगा सर? उन्होंने मतलब जो पिछले 5 साल में इतना रन किए हैं वो भी तो किए हैं। तो एज ए क्रिकेटर मतलब एज ए बैट्समैन आपकी ज़िंदगी में ये फेजेस तो आते रहते हैं, और मेरे ख्याल से बाकी 10 प्लेयर भी हैं, हमें उन पर फोकस करना चाहिए। अब मतलब वो अगर स्ट्रगल कर रहे हैं तो कोई बात नहीं, और आप देखेंगे कि वेरी सून वो मतलब रन भी करना शुरू कर देंगे और बड़े रन भी करेंगे। वो मतलब वर्ल्ड क्लास प्लेयर हैं, उनको पता है कैसे करना है, उनको पता है इस फेज से कैसे गुजरना है। अबू बकर हियर। सलमान, 3 दिन बाकी हैं इस टेस्ट मैच को ख़त्म होने के लिए, और फोरकास्ट में चौथे और 5वें रोज़ भी बारिश बताई गई है। आपके पास एक ही मैच है ये सीरीज़ स्क्वेयर करने के लिए। आज जो रिज़ल्ट बैटिंग की सूरत में सामने आए, इससे सेटिस्फाइड है? ये स्कोर कार्ड यही आपने प्लान किया था या इसको प्रोलॉन्ग करना चाह रहे थे? सर वेदर तो हमारे कंट्रोल में आई नहीं है, तो वो हम कोशिश करते हैं कि जो चीज़ कंट्रोल कर ही नहीं सकते तो उसको उसके बारे में ज़्यादा सोचें नहीं। और मैंने पहले भी बताया कि इंटरनेशनल क्रिकेट में टेस्ट मैचेस में आप ये कभी सोच ही नहीं सकते कि इतने रन बने या इतने रन नहीं बने पहली इनिंग में, क्योंकि आपको नहीं पता। जब तक 2 इनिंग ही नहीं हो जाए आप डिसाइड ही नहीं कर सकते कि कितने रन होने चाहिए। हाँ, आप कह सकते हैं कि 330-35 होना चाहिए था, तो वो तो मतलब एज ए जब अगर 330 करते तो तभी इस टाइम में यही बोल रहा होता कि यार 360-70 कर लेते। तो आप जब तक 2 इनिंगें नहीं होंगी मतलब डिसाइड नहीं कर सकते। लेकिन हाँ, अगर आप विकेट का पूछें तो मेरे ख्याल से देयर इज़ इनफ। अगर आप अच्छे एरिया बॉल करें तो काफ़ी कुछ है बॉलर्स के लिए, और कोशिश करेंगे कि हम कल अच्छी जगह बॉल करें। सलमान मोहम्मद जाहिद खान, डेली जहां से। ये बताइएगा कि 274 स्कोर जो पाकिस्तान क्रिकेट टीम ने किया, ये तो वनडे का स्कोर भी नहीं है, और ख़ुसूसन रावलपिंडी की पिच के ऊपर वनडे का स्कोर भी 300 प्लस ही होता है। इतनी जल्दी आउट हो जाना, क्या बैट्समैन जो है वो बांग्लादेश की टीम का कोई प्रेशर ले रहे हैं, या इस आप लोग इनको जल्द से जल्द पकड़ पाएंगे, कम से कम स्कोर पे आउट कर पाएंगे? सर आप टेस्ट मैचेस देखेंगे वहाँ पर 120-25 भी होता है, मतलब ऐसी पिचेस होती हैं। तो मुझे लगता है कि इस पिच पे इनफ मतलब है बॉलर्स के लिए। और 274 मैंने आपको पहले भी बोला कि फर्स्ट इनिंग में आप डिसाइड ही नहीं कर सकते कितना स्कोर मतलब अच्छा है कितना अच्छा नहीं है, जब तक 2 इनिंगें नहीं हो जाए। और दूसरी आपका सवाल था कि इनको पकड़ पाएंगे। कोशिश करेंगे सर, अच्छी एरिया बॉल करें, और ज़रूर इंशाल्लाह ताला अपने आप वैसे नहीं कोशिश करेंगे कल। सलमान भाई, दिस इज साथ फ्रॉम ग्रीन टीम। अच्छा सलमान भाई, फर्स्ट टेस्ट में हमने देखा कि जब रिजवान बैटिंग कर रहे थे टेल एंडर्स के साथ तो वो काफ़ी ज़्यादा एक्सपोज कर रहे थे टेल एंडर्स को स्पिन के सामने। आज हमने सेम चीज़ देखी जब हुरम शहजादा के साथ बैटिंग कर रहे थे, मेहदी हसन का बॉल काफ़ी ज़्यादा हो रहा ब्रेक हो रहा था, तो आप उनको काफ़ी ज़्यादा एक्सपोज कर रहे थे। तो डोंट यू थिंक थोड़ी बेहतर गेम अवेयरनेस सोच सकती थी उस मोमेंट के ऊपर? सर आपको लगता है कि 6 आउट हो तो मैं 4 बॉलें खुद खेलूँ? मतलब 6 आउट पे तो ये नहीं कर सकते ना। मतलब 8 आउट हुए तो देख लें, जब इब्रार आया तो मैंने 4 बॉलें खुद ही खेली हैं। तो सर टीम के प्लान्स होते हैं, हम कोशिश करते हैं उनको फॉलो करना। और 6 आउट पे इतनी जल्दी तो आप अगर आप मतलब 4 बॉलें खुद ही खेलना शुरू कर देंगे तो मेरे ख्याल से वो अच्छा नहीं रहता, मुझे ऐसा लगता है। और टीम का यही प्लान था, जो टीम का प्लान है हम उसको कोशिश करते हैं फॉलो करने की।